ہیں, پی ٹی آئی کی جو حکومتیں ہیں, ان کے اتحادی کی جو حکومتیں ہیں, ڈاکٹرز کا, ینگ ڈاکٹرز کا جو مطالبہ ہے, چاہے وہ رسک الاؤنس ہو, چاہے وہ سیکیورٹی کا ہو, آپ ان کو سلوٹ صرف نہیں کر سکتے ہیں, ان کے لیے اچھے الفاظ صرف نہ استعمال کرے, اپنا قدم میں آپ دکھائے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں. اب نہ ان کو صحیح پیسہ دینے کو تیار ہے, نہ ان کو ریگولرائز کرنے کو تیار ہے, نہ ان کو رسک الاؤنس دینے کو تیار ہے, نہ ان کو فیسلٹیز دینے کو تیار ہے, نہ مریض کو, پیشنٹس کو ٹیسٹ کرنے کو تیار ہے. تو کرنے کو کیا کرنے کو تیار ہے؟ حکومت پاکستان صرف اور صرف ہمیں ہر فورم پہ, معاشی فورم پہ, فورن پالیسی پہ, اور اب پبلک ہیلتھ پہ پاکستان کے عوام کو لابارس چھوڑ رہا ہے. آج بھی ان کے جو طریقہ کار ہے, ان کا جو سازش ہے, ان کا جو انجینئرنگ ہے, وہ بھی چل رہا ہے. ایک طرف ہم ایک گلوبل پینڈیمک کا مقابلہ بھی کریں, 70 ایئرز بعد سب سے بڑا لوکس کا حملہ جو ہمارا فصل کا, ہر پاکستانی کا فصل کو خطرہ میں ڈالتا ہے, اس کا بھی مقابلہ کریں. ایک طرف سے ہم دنیا میں جو معاشی بحران ہمارے سامنے آ رہا ہے, جو پاکستان میں زیادہ سنگین ہوگا آپ کا سلیکٹڈ کی وجہ سے, اس کا بھی مقابلہ کریں. اور اس میں ساتھ ساتھ یہ جو سیاسی انجینئرنگ اور این ایس سی ایوارڈ کے خلاف سازش چل رہا ہے, اس کا بھی مقابلہ کریں. ہم اس کے لیے تیار ہیں, ہر جگہ پہ, ہر محاذ پہ لڑنے کو تیار ہے. این ایف سی پہ, آپ کے ٹیکس کلیکشن پہ, ہم اپنا کیس ہر فورم پہ لڑنے کو تیار ہے. سندھ حکومت نے, صوبائی حکومتوں نے ڈیلیور کیا جہاں ایف پی آر نے فیل کیا. صوبہ سندھ پاکستان کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ آپ کیسے ڈیولوشن سے لے کے آج تک سب سے زیادہ اضافہ کیا ہے آپ کا ٹیکس کلیکشن میں, آپ کا ٹیکس بیس میں. کوئی سیاسی جماعت اپنے آپ کو گورننس کے لیے یا حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں کھلوا سکتے جب تک وہ ٹیکس بیس پہ اور ٹیکس کلیکشن پہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں ہو یا صوبہ میں ہو, ہمارا ریکارڈ سامنے ہے. ہم نے اضافہ کیا, ہم نے دنیا کے ریسیشن کے دوران وفاقی سطح پہ اضافہ کیا, اور 2000 جب سے یہ ڈیولوشن ہوا سے لے کے آج تک سالوں سال سندھ حکومت نے اپنا ٹیکس کلیکشن میں, اپنا ریونیو میں اضافہ کیا ہے. ہم نے کووڈ کے دوران بھی, کووڈ کے پینڈیمک کے دوران جب وہ رو رہے تھے پی ٹی آئی کی حکومت سینٹر میں, نیشنل اسمبلی میں, کہ ہم ادھر کووڈ کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن, کووڈ کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن, صوبہ سندھ نے 8% اضافہ کیا ہے. 8% اضافہ ہوا ہے ہمارا ٹیکس کلیکشن میں کووڈ کے دوران. یہ لوگ این ایف سی پہ حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنا حصہ پہ سے کاٹو تاکہ ہم اسلام آباد کو کھلا سکتے ہیں. اس وقت جب ہم پینڈیمک کا مقابلہ کر رہے ہیں, جب ہم اپنے عوام کا صحت اور زندگی کو بچا رہے ہیں, اور مزید ہمارا وسائل ہم سے لینا چاہ رہے ہیں, اور جو وعدہ ہم نے کیا تھا این ایف سی کے وقت میں کہ جو پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہوگا وہ ہم 15% آف جی ڈی پی تک لے کر آئیں گے, اور صوبائی حکومت جو ہے اپنا پروونشل جو شیئر ہے 0.3% آف جی ڈی پی سے لے کے 1.15% آف جی ڈی پی تک لے کر جائیں گے. فیل کون ہوا ہے؟ صوبائی حکومتوں, نہ صرف سندھ حکومتوں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آل دا پروونشل گورنمنٹس. ہم نے 2017 میں 1.15% آف جی ڈی پی تک پہنچ چکے تھے ٹیکس کلیکشن میں. وفاقی حکومت آج تک 9 یا 11% سے زیادہ نہیں پہنچ سکے. وہ فیل ہو رہے ہیں. آپ اپنے ٹارگٹس میٹ کر رہے ہو, اپنا وعدہ پہ پورا اتر رہے ہو, اور پھر بھی ہم پہ حملے. آج بھی سینٹ میں انہوں نے کسی ممبر کو استعمال کر کے این ایف سی پہ حملے کی کوشش کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے. ہمارے پاس طریقہ کار ہے ٹیکسز کا اکٹھا کرنا, بجٹ چلانا. آپ یہ ہائیبرڈ سلیکٹڈ کو جو ناکام ہے, جو ہر محاذ پہ فیل ہو چکے ہیں, ان کی وجہ سے پاکستان کے وفاق کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلیں. اس کا نقصان ہر صوبہ کو ہوگا, ہر پاکستانی کو ہوگا. پاکستانی اس وقت میں اٹھا سکتا ہے. ایک اور بات جو میں آپ سب کو اب مدد مانگوں گا میڈیا سے, یہ تو ڈرامہ تماشا جو پی ٹی آئی کا ہے کرپشن پہ, اب انسان بنے اور تھوڑا سا ان بائس طریقے سے یہ رپورٹ کریں. آپ کو پتا ہے, آپ سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت
पाकिस्तान की तारीख में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा है. You can't spell corruption without the words PTI. आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो बाकी हुकूमतें थे, आप लोग थकते नहीं थे हमें सुनाना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कह रहा है कि पीटीआई की हुकूमत में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है. पीटीआई की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत तारीख में पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा है. ये इनका रिपोर्ट है. ऑडिटर जनरल का अपना रिपोर्ट, जो कि पीटीआई का इमरान खान जब ऑपोजिशन में था जगह जगह लहराता था कि करप्शन करप्शन. अब उसी पीटीआई का ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट कहता है कि 270 बिलियन रुपीस का इरेगुलरिटीज हुआ है पीटीआई की वफाकी हुकूमत में पहले साल में. बस अपने ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट. ये इमरान खान के जो खुद का, इमरान खान वो सियासतदान है जिसने हर एमनेस्टी स्कीम का फायदा लिया है. मुशर्रफ का पहला एमनेस्टी स्कीम का उसने खुद फायदा लिया. इमरान खान खुद साहब जनाब एमनेस्टी स्कीम का, मुशर्रफ का पहला एनआरओ किसके लिए था? इमरान के लिए था. मैं इमरान खान का वालिद करप्शन की वजह से हटाया गया और अब वही सिलसिला इमरान खान बरकरार रख रहा है. इंतकाम ले रहा है उनसे जिन्होंने करप्ट को निकाला और खुद करप्शन का रिकॉर्ड तोड़ रहा है. अपना रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक. मैं क्या क्या आपको सुना दूं? अलीमा खान आप भूल गए हो? सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में अमीराते खड़े हो रहे हैं. आज तक का है मनी ट्रेल? कहीं नहीं. एमनेस्टी हो तो अलीमा का एमनेस्टी बजट पे आप खामोश. हमारा जीना हराम कर देता अगर हम ऐसे काम करते. कैसे आपने ये बर्दाश्त किया है? अलीम खान नैब के थ्रू बहुत सियासतदान खुद मनी लॉन्ड्रेड हो गया था, पैरा बुरा था. अब अच्छा है, कोई सवाल नहीं. उनका मनी ट्रेल कहां है? केस कहां है? सिलसिला कहां तक पहुंचेगा? उनका हर वजीर पे इल्जाम है. सूबे महाज की वजीर पे करप्शन के इल्जाम, नैब खामोश है. सबसे स्पेशल जो स्पेशल असिस्टेंट है ब्रिटिश सिटीजन है, पैनामा का केसेस है. उसके लिए तो अगर ईसीएल से हटाना है तो ईसीएल से हट जाता है. नैब का पेस सर का पाव का ड्रामा आज तक स्पेशल असिस्टेंट्स तक भी नहीं पहुंच सकता है. जहांगीर तरीन तो पहले से नाअहल था. अपने नाअहल तरीन को 1-2 साल से हुकूमत चलाया और अब वो भी भगोरा बन गया है और नैब से चुप रहा है लंदन में. इमरान खान की हुकूमत के दौरान पोलियो में करप्शन, हज में करप्शन, पीआईए में इतना करप्शन कि उन्होंने पीआईए को बिठा दिया है. पीआईए के जहाज किसी मुल्क में नहीं जा सकते हैं इनका नाअहली, इनकी करप्शन की वजह से. जाली डिग्री रखने वाले वजीर का गलत इल्जाम पे आप पीआईए को बिठा सकते हो. मैं बताता हूं आप, इस पे भी करप्शन. रोजफेल्ट में बेचने भी करप्शन. हर जगह हर तरफ जहां भी पीटीआई हाथ लगाता है, पूरा पंजाब में आपको बताऊं, आप लोग नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं, पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है. हर डिस्ट्रिक्ट, हर डीसी, हर ठेका, हर ओहदा, हर अपॉइंटमेंट आप पूछे कौन अपॉइंट करता है और पैसा कहां जाता है. सवाल आप नहीं पूछेंगे. बिलियनट्री सुनामी में करप्शन, मालूम जब्बा में करप्शन. केपीके ने तो करप्शन का रिकॉर्ड्स तोड़ दिया. वहां के लोग शर्मिंदा हो गया कि आपने इतना करप्शन कैसे कर दिया. इनका फॉरेन फंडिंग केस में करप्शन. अकबर एस बाबर आज तक रो रो कर क्या कह रहा है कि इन्होंने करप्शन किया. इमरान खान ने खुद करप्शन किया. मीडिया चुप, नैब चुप, इलेक्शन कमीशन इस पर डेट पर डे कि ये तो कोई सो मोटो नहीं, ये सुस्त रवि का शिकार नहीं, इस पे करप्शन नहीं. आई मीन हद होती है. शुगर पे करप्शन, आटा पे करप्शन, तेल पे करप्शन, हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका. मीडिया खामोश, हम करप्ट है, ये फरिश्ते. ये मुनाफिकत का सिलसिला बंद होना पड़ेगा. आपको सच बताना पड़ेगा पाकिस्तान के अवाम को, और जो सिलेक्टर्स हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने इस हाइब्रिड सिलेक्शन को इस बात भी की थी कि करप्शन नहीं होगा और अब इतना आप करेक्शंस का रिकॉर्ड्स कैसे तोड़ रहे हैं.
नैब चेयरमैन को कोई शर्म नहीं आता, हर दिन टीवी पे आता है, बक करता है, और जिनके खिलाफ उसने खुद कहा था 1 साल पहले 2 साल पहले पता नहीं कब कि मैं अब यहां देख लूंगा, आज तक इसने केस नहीं की। बीआरटी पे ये सबसे मजेदार करप्शन का एक व्हाइट एलिफेंट है। केपीके आज तक उनका बीआरटी का सिलसिला, जिससे खान का किचन चलता है, जिससे पीटीआई का इलेक्शन कैंपेन चलता है, जिसका अली जैदी उनका वजीर का फ्रंटमैन कॉन्ट्रैक्टर है, और खुद अली जैदी के जो फ्रंटमैन है वो कॉन्ट्रैक्टर है बीआरटी का। पैसा तो अली जैदी बनाता है इमरान खान का किचन चलाना, इमरान खान का इलेक्शन और पीआर कैंपेन चलाना। आप ये बात नहीं उठाते। हम तो मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आप अगर, जैसे नैब चेयरमैन कहता है कि बीआरटी पे स्टे ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर हटाओ। ये क्या बात है? कैसे 2 निजाम है एक पाकिस्तान में? सिंध का वजीर आला हर दूसरा हफ्ता चक्कर पेशी भुगता है नैब का, वो भी इस्लामाबाद में, जब हम पैंडेमिक की मुकाबला कर रहे हैं, जब हम अपने किसान का फसल, जिंदगी, सेहत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा दुनिया मान रहे हैं कि अगर कोई मेहनत कर रहा है सिंध में, पाकिस्तान में, तो वजीर आला सिंध है, बाकी तो सूबा में उनका। और बीआरटी पे जहां अली जैदी का दोस्त इन्वॉल्व है, फ्रंटमैन इन्वॉल्व है, वो खुद इमरान खान के लिए करप्शन कर रहे हैं, वहां से सुप्रीम कोर्ट का स्टे। मुतालबा करते हैं कि अगर इंसाफ है, दोगला निजाम नहीं है, तो बीआरटी पे स्टे हटाओ, नैब का केस चलाओ और पकड़े जिसने करप्शन किया है केपीके के अवाम का पैसा के साथ। आज तक करप्शन कर रहे हैं कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ। ये एक बहुत संगीन इल्जामात हैं। अब किसी ने इनके मुंह पर डाला नहीं है कितना करप्शन हो रहा है रेलवेज में, कितना करप्शन हो रहा है पोस्ट ऑफिस में। इन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पहले मीडिया का अकाउंटेबिलिटी होता था, जुडिशरी से डर होता था, नैब से या करप्शन केसेस का। इनका जो सिलेक्टेड है उनका कोई फिक्र नहीं है कि जब तक वो स्क्रिप्ट पे चलेंगे तब तक वो पैसा दबा के लूटे। इस वक्त जब पाकिस्तान के अवाम इतना बड़ा मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, जहां अगर अकाउंटेबिलिटी हो तो हुकूमत का हो, अगर अकाउंटेबिलिटी का निजाम है, वो माजी में तो हिस्ट्री लेसन्स नहीं सिखाते हैं, वो आज का करप्शन को पकड़ते हैं और आज का करप्शन को रोकते हैं। मगर हमारा नैब और हमारे इदारे वफाकी करप्शन को फैसिलिटेट कर रही है। हर मिनिस्ट्री में करप्शन चल रहा है। और जो मैं आपके सामने आज बताना चाह रहा हूं, आज दिखाना चाह रहा हूं, ये जो एफआईए का रिपोर्ट है, आप सबके साथ शेयर करता हूं, आप सब बड़े टीवी चैनल्स पे चलाए। पीटीआई का अपना एफआईए का अपना रिपोर्ट कि इमरान खान का एटीएम, अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक का जो करप्शन है, ये रिपोर्ट दबाया गया है। इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आज तक रियासत पाकिस्तान एटीएम, इमरान खान, अबराज ग्रुप को फैसिलिटेट कर रहा है, जिन पे इल्जाम है, संगीन इल्जाम है कि बिल गेट्स जैसे फाउंडेशन से वो चोरी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को आपने पढ़ना है कि किस तरीके से आज तक के इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप का, पीटीआई का मुकमुका की वजह से वो कराची के अवाम के खून चूस रहे हैं। ये क्या इनके इतने अरबों रुपया का प्रॉफिट्स है, अरबों रुपया का प्रॉफिट्स है, और आपका गैस चोरी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में है, आज तक 1 रुपया नहीं दिया है, अरबों रुपए का गैस खा चुके हैं, उनका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है गैस लेने का। इस पे कोई मीडिया बात करने को तैयार नहीं। इसलिए अबराज तो इमरान का फ्रंटमैन है, अबराज तो इमरान का एटीएम है। आई मीन सिंध में कोई जो हर आदमी, हर वडेरा, हर डीसी, हर ब्यूरोक्रेट, जब दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं, कभी मिला नहीं, वो जरदारी का दोस्त और जरदारी का फ्रंटमैन बन जाते हैं। जो आपके ऑन रिकॉर्ड है, बीवी के किताब में लिखा है कि ये फंड करता था, खुद मानता था कि मैं इमरान खान को फंड करता हूं। जब ब्रिटेन में, यूके में पकड़ा गया, फोन कॉल किसको कर रहा था? इमरान को और आरिफ अलवी को। आज तक कराची के अवाम को क्या अजाब में डाला हुआ है।
लॉकडाउन से लेके आज तक डबल बिलिंग, ट्रिपल बिलिंग, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा। और अब जो सिलसिला पहले हमारे देहातों में होता था, अब हमारा कैपिटल में हो गया है। घंटों का लोड शेडिंग। किस चीज का बिल दे रहे हैं कराची के वहां? ये क्या है, नाइंसाफी है कि कराची में बिजली आती नहीं और बनी गाला से बिजली जाती नहीं। ये बहुत ही बड़ा करप्शन स्कैंडल है। मगर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो हमारे दौर में आया था वो आज का गजब करप्शन का व्हाटएवर कहानी, और पता नहीं क्या क्या कयामत आप टीवी पे खड़ा कर देते थे हर एक केस का जिस मैंने आज जिक्र किया। मेगा करप्शन स्कैंडल्स है। ये एफआईए का रिपोर्ट है। अगर मीडिया को कोई इरादा है अनबायस बनने का, इस पे आप जरा एक प्रोग्राम करके दिखाएं, एक प्रोग्राम करके दिखाएं। ये लोग आपका और मेरा, हर इस शहर में रहने वाले का देखिए क्या हाल कर रहे हैं हमारे साथ। लोग रो रहे हैं, काम नहीं कर सकते, सो भी नहीं सकते, पका नहीं सकते। लॉकडाउन अपने आप को तहफ्फुज के लिए घर में आप बंद करो, अपने आप कैसे, अगर पंखा नहीं चल रहा। दिस इज अ कंस्पिरेसी अगेंस्ट द पीपल। इट इज डे लाइट रॉबरी एंड इट्स मैं और आप ना इंसाफी कर रहे होंगे पाकिस्तान के अवाम के साथ अगर हम इस किस्म के स्कैंडल्स को छुपाते रहेंगे। ये कैसे कह सकते हैं? इसको हमें पता है कि एटीएम है, उनका कनेक्शन क्या है के इलेक्ट्रिक में, लेकिन के इलेक्ट्रिक में वफाकी हुकूमत का बोर्ड मेंबर भी है और पीटीआई के कार्टून्स बाहर एहतजाज भी कर रहे हैं। और ये जो के इलेक्ट्रिक का आपका अबराज का मेरा स्कैंडल का तो प्रूफ है ही है। आपका अपना पीटीआई का एफआईए ने ये रिपोर्ट जमा किया। हेस्को, सेप्को, बाकी सूबे का क्या बहाना है आपके पास? हम कब से लोड शेडिंग भुगत रहे हैं। लोड शेडिंग अगर कराची के कुछ इलाके के लिए एक नया चीज है, बाकी सब के लिए ये ना हुआ है। लड़काना से पूछे, गवादर से पूछे कि किस किस्म का लोड शेडिंग को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। ये हुकूमत हर फोरम पे फेल हो चुका है। इनका, इमरान का वजीर आजम रहना, हुकूमत चलाना का कोई एक्सक्यूज नहीं बनता। फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। सेहत और जिंदगी हर पाकिस्तानी का खतरा में, हर किसान का फसल खतरा में, हर मजदूर का रोजगार खतरा में। हम कब तक इनका नालायक सेलेक्टेड का हुकूमत को बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक इनके लिए इनके बैकर्स एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे? आप सबको पता है कि इनको हुकूमत करना नहीं आती, सियासत भी नहीं आती, और अब अवाम को रिलीफ, अवाम को की मईशत चलाना उनको वो भी नहीं आता। आप सबके सामने मैंने यहां 20 जून को पीटीआई की हुकूमत को चैलेंज किया था, और आज तक ये बुज़दिल लोग हर चैलेंज से भागते हैं। अब तो मैं आपको बता रहा हूं कितना, अब 20 जून 2020 से 1,987,000 सेकेंड्स हो चुके हैं, 33,120 मिनट्स हो चुके हैं, 552 आवर्स हो चुके हैं, 23 डेज हो चुके हैं, 3 वीक्स एंड 2 डेज भी हो चुके हैं। लेकिन आज तक जो मेरा चैलेंज था कि NICVD के मुकाबले में एक हुकूमत का हॉस्पिटल बताए जो पीटीआई ने पिछले सालों में खुद बनाया हो, एक भी आज तक इसका इस चैलेंज का जवाब नहीं दे सकते हैं, भाग रहे हैं। एक नाम ले, समझ, एक ही कहा ना, हमने तो 18-17 पता नहीं कितने NICVDs को खड़ा कर दिया है पूरा सिंध में। आपसे मैं कह रहा हूं, एक हार्ट का हॉस्पिटल, एक कार्डियोवैस्कुलर फैसिलिटी आपने KPK में खड़ा कर दिया होगा, जहां मुफ्त इलाज हो, जहां गरीब को का इलाज हो। आज तक जवाब नहीं दे सका। नेशनल असेंबली के फ्लोर पे मैंने चैलेंज किया था
वजीर आजम को कि डिबेट में या पार्लियामान में या टीवी पे हमारा डिबेट का चैलेंज कबूल करे, आमने सामने आए, हम आपको डिबेट करने को तैयार है। उससे भी डर गया, उससे भी हमारा वजीर आजम बुज़दिल, फेस करने को तैयार नहीं। हर वजीर आजम आता था नेशनल असेंबली में, जवाब देने को तैयार होता था। शहीद बीबी को याद करे, इवन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और राजा परवेज अशरफ साहब जब वजीर आजम थे, वो हर सेशन में होते थे, वहां डिबेट करने को तैयार। अगर वहां वो डरता है, शौक है टीवी का, तो टीवी पे करने को तैयार। मगर पीटीआई की हुकूमत इस चैलेंज से भी भाग रहा है। तो आज हम उनको एक नया चैलेंज लेते हैं, देखते हैं कि तीसरा चैलेंज पे हमारा मुकाबला करने को तैयार है या नहीं। सिंध का जो टेस्टिंग रेट है, सिंध का जो पर कैपिटा टेस्टिंग है, मैं चैलेंज देता हूं पीटीआई की हुकूमत को। पंजाब हो या केपी, आपका पर कैपिटा टेस्टिंग रेट सिंध का बराबर को लेकर आए। कोविड में कोविड के मुतासरीन को लोकेट करने की तो कोशिश करे। कहते हो आप काम कर रहे हो, उस पे दुनिया को लीड कर रहे हो। अगर आप दुनिया को लीड कर रहे हो तो आपका कोशिश होना चाहिए कि हर जो मुतासरीन है उसको आइडेंटिफाई तो करे। हमारा